Hi everyone, I'm Arshdeep and welcome back to your logical reasoning session. Today we'll be doing some more question on syllogisms. So let's begin. Okay, so the instruction for the first few questions is that you have the questions and then out of that you have to find out whether the conclusion 1 follows, conclusion 2 follows, either of the two follow, neither follow, or the last option is that both the conclusions follow. So let's start the questions. Okay, so here we have the first question with the statements all pens are roads. The second statement is all roads are houses. And then we have the conclusions all houses are pens and some houses are pens. So let's see. सबसे पहले statement से हम अपना diagram create करने की कोशिश करते हैं. So all pens are roads. So all the pens they are roads. All roads are houses. So जितनी भी roads हैं they are houses. So the diagram is pretty simple, is not complicated at all. So यहाँ पर पहली conclusion check करते हैं. All houses are pens. तो all houses they are not pens. कुछ houses pens हैं but not all of them. तो इसका मतलब जो पहली conclusion है वो correct नहीं है. After that, talking about the second one, some houses are pens. So we can see कि houses वाला circle है उसमें से कुछ portion pens का है. So that means some houses are pens. So the second one is correct. So इसका मतलब है first conclusion गलत है, second वाली सही है. So that means which option is correct? Option B, which is only the second conclusion follows. Alright, let's go ahead to the next question. Okay, so talking about this question, high statements हैं all pens are chalks. Second, all chairs are chalks. And then we have our conclusions. तो पहले अपना diagram देखते हैं. All pens, ये सारे के सारे pens, they are chalks. ये रहा chalks. अब chalks और chairs दोनों CH हैं तो मैं पूरा लिख देती हूँ. Okay, so all the pens they are chalks. All the chairs are also chalks. तो जितनी भी chairs हैं वो भी chalk है. So let's say ये chair. ये तो पहली possibility है, but there is one more possibility that all the pens they are chalks and all the chairs are chalks. तो हो सकता है कि chairs and जो अंदर है, so chairs are have a little common area with the pens also. So ये possibility भी है. तो अब हम दोनों possibilities को लेकर अपनी conclusions check करते हैं. First up, some pens are chairs. So हम देख सकते हैं कि some pens are chairs. इस केस में possible है, इस केस में नहीं है. तो obviously when we know कि अगर एक जगह possible है दूसरी जगह नहीं, so that means वो conclusion हो जाती है false. Then we have some chalks are pens. यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये चौक का सर्कल है, उसमें से कुछ एरिया पेन्स का है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. So that means this is a true conclusion दोनों केसेस में. So here the correct option is going to be option B, जिसका मतलब है कि सिर्फ second conclusion is true. Let's go ahead to the next question. Okay, so यहाँ पर हमारा statement है every minister is a student. नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट इज इनएक्सपीरियंस्ड. सो इसको ड्रॉ करते हैं. एवरी मिनिस्टर, नाउ एवरी का मतलब ऑल होता है एंड इट इज द सेम थिंग. हमारा डायग्राम जो है वो चेंज नहीं होता. सो यहाँ पर एवरी मिनिस्टर इज अ स्टूडेंट. सो इसका मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं वो सारे के सारे हैं स्टूडेंट. एवरी स्टूडेंट इज इनएक्सपीरियंस्ड, जिसका मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे हैं हमारे इनएक्सपीरियंस्ड के सर्कल में. So यहाँ पर हमें और कोई possibility नहीं दिख रही. So this is the only diagram we can make. तो अब conclusions देखते हैं. First one, every minister is inexperienced. तो अब हमें दिख रहा है कि जितने भी minister हैं पूरा का पूरा circle जो है वो ये I वाले inexperienced के circle में है. So this means this option is correct. Next, some inexperienced are students. तो ये इनएक्सपीरियंस का इतना बड़ा सर्कल है, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो ये एस यानी स्टूडेंट्स का है. सो दिस मीन्स कि सम इनएक्सपीरियंस्ड आर स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है. सो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंक्लूजन सही हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ई, यानी कि बोथ द कंक्लूजन्स दे आर करेक्ट.
लेट्स गो अहेड. ओके, सो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट्स हैं ऑल बर्ड्स आर टॉल. नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम टॉल आर हेन्स. तो सबसे पहले देखते हैं ऑल बर्ड्स आर टॉल. सो यानी जितनी भी बर्ड्स हैं वो सारी हैं टॉल. उसके बाद सम टॉल्स आर हेन. सो जितनी टॉल हैं उनमें से कुछ जो है वो हेन्स हैं. नाउ ये तो एक पॉसिबिलिटी है. देयर कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी जिसमें ऑल बर्ड्स दे आर टॉल एंड सम टॉल आर हेन्स. सो हो सकता है कि वो इस तरह हो बिकॉज वी आर नॉट श्योर एज वी आर नॉट मेंशन कि ये हेन्स और जो हमारी बर्ड्स है इनमें कोई रिलेशन है या नहीं. ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. सो वी कैन टेक दैट एज अ पॉसिबिलिटी. अब कंक्लूजन्स देखते हैं. फर्स्ट वन इज सम बर्ड्स आर हेन्स. तो सम बर्ड्स आर हेन्स इस केस में हमें दिख रहा है कि नहीं ऑप्शन. इस केस में दिख रहा है ऑप्शन है. ऐसी पॉसिबिलिटी है. सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू इन एवरी केस. जो हर केस में ट्रू नहीं है वो कंक्लूजन हम नहीं कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट है सम हेन्स आर टॉल्स. सो यहाँ पर सम हेन्स आर टॉल्स हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ टॉल और हेन का कॉमन एरिया यहाँ है, कुछ टॉल और कॉमन का यहाँ पर, कुछ टॉल और हेन का कॉमन एरिया यहाँ है. सो दिस मीन्स ये सेकेंड कंक्लूजन करेक्ट है. So first conclusion is false, the second one is true. So the correct answer is going to be option B. So hopefully धीरे धीरे you are getting a better idea about these questions and you are also solving it at the same pace. Let's move ahead. Okay. So यहाँ पर अब हमारे पास 3 statements हैं और 2 conclusions हैं. तो यहाँ statement है some desks are tents. Sorry, यहाँ पर are missing है. So some desks are tents. Next है some tents are rivers and last है all rivers are ponds. तो अब इसे देखते हैं. some desks are tents. तो इसका मतलब कुछ desk जो हैं वो tents हैं. some tents are rivers. तो कुछ tents rivers हैं. and all the rivers are ponds. जितनी भी rivers हैं वो सारी की सारी ponds हैं. तो ये तो एक ऑप्शन है बट साथ के साथ आई कैन थिंक ऑफ अनदर ऑप्शन जिसमें है कि ये some desks are tents and some tents are rivers. तो इसलिए हो सकता है that this is also a possibility because हमें desk और river के बीच में कोई relation अभी तक पता नहीं है. So this is also a possibility. Last point is all rivers are ponds. So all rivers they are ponds. So इस तरह से हम अपना diagram जो है वो बना सकते हैं. So now we're going to check the conclusions in both of these possibilities. पहला कंक्लूजन सम पॉन्ड्स आर टेंट्स. तो सम पॉन्ड्स आर टेंट्स यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर पॉन्ड्स और टेंट्स कुछ कुछ रिलेशन है हमें दिख रहा है. यस ऑफ कोर्स. यहाँ पर सम पॉन्ड्स आर टेंट्स क्या हमें यहाँ पर रिलेशन दिख रहा है? यस. सो वी कैन सी कि पहली वाली ऑप्शन जो है वो दोनों केस में सही है बिकॉज वी कैन सी अ कॉमन एरिया हियर. नेक्स्ट है सम पॉन्ड्स आर डेस्क्स. अब यहाँ पर पॉन्ड्स और डेस्क का आपको दिख रहा है कोई रिलेशन नहीं है. यहाँ पर जो है पॉन्ड्स और डेस्क का रिलेशन है. सो दैट मीन्स यहाँ पर रिलेशन एक जगह है एक जगह नहीं है. सो द कंक्लूजन इज ट्रू इन वन पॉसिबिलिटी बट नॉट द अदर. ऐसी कंक्लूजन जो हर केस में ट्रू नहीं है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो दिस इज अ फॉल्स वन. सो हियर वी हैव फर्स्ट कंक्लूजन विच इज ट्रू. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. दैट मीन्स सिर्फ पहली कंक्लूजन ट्रू है. Let's move ahead to the next question. Okay, so we have this question जहाँ statements है some forests are huts, some huts are walls, some walls are nets. तो अब इसके लिए हम अपना डायग्राम बनाते हैं. some forests are huts. तो ये रहे forest, some forests are huts. उसके बाद है some huts are walls. तो ये huts हैं और उसके साथ walls. Some huts are walls. Some walls are nets. ये है some walls are nets. अब इसी के साथ जो है हम मल्टीपल डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसके अंदर हम वॉल्स का फॉरेस्ट के साथ, नेट्स का हाउसेस के साथ, मतलब जो भी रिलेशनशिप ऑलरेडी डिस्क्राइब नहीं है हम उसको मिलाकर कंबाइन कर हाइपोथेटिकली और जो है पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं. बट
एक डायग्राम देखकर भी हमारा जो है आंसर यूजुअली निकल सकता है. सो लेट्स सी कि इसी डायग्राम को, इसी पॉसिबिलिटी को कंसिडर करके हम कैसे अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पर सम फॉरेस्ट्स आर हट्स, सम हट्स आर वॉल्स एंड सम वॉल्स आर नेट्स. ये मेरा डायग्राम कंप्लीट हो गया. अब इसके अंदर कंक्लूजन्स चेक करनी है. सम नेट्स आर फॉरेस्ट. सो सम नेट्स आर फॉरेस्ट अभी इस केस के अंदर तो नहीं है, बट हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी केस में हो, बिकॉज टेक्निकली किसी भी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है कि फॉरेस्ट और नेट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. सो येस, इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट किसी और केस में हो सकता है. सो दैट काइंड ऑफ अ कंक्लूजन जहाँ पे पक्का आंसर नहीं पता उसे हम लेते हैं फॉल्स. नेक्स्ट है सम नेट्स आर हट्स. अगेन यहाँ पर नेट्स और हट्स के बारे में कोई रिलेशन एज सच हमें नहीं पता. एज ऑफ नाउ वी डू नॉट नो कि क्या रिलेशनशिप है. ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी केस में सम नेट्स जो हैं वो हट्स हो, लेकिन एक जनरल केस में इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. सो इसका मतलब है ये कंक्लूजन भी फॉल्स है. सो हियर वी कैन सी कि दोनों कंक्लूजन्स हैं वो फॉल्स हैं. सो दैट मीन्स क्या करेक्ट ऑप्शन है? द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी. बोथ conclusions are false. In case you have any confusion regarding the options, तो पहली स्लाइड में जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर we had the options कि A, B, C, D and E कौन सी options हैं. So you can refer to that. All right, let's move ahead to the next question. Okay. सो अब यहाँ से जो क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं. सो दैट मीन्स वी आर नो मोर रेफरिंग टू द ऑप्शंस दैट वर गिवन अर्लियर. अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, कंक्लूजन्स हैं एंड आंसर की है, तो हमें इस आंसर की को फॉलो करना है. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज. सबसे पहले है हमारे पास सम पॉट्स आर बकेट्स, ऑल बकेट्स आर टब्स, ऑल टब्स आर ड्रम्स. तो अब सबसे पहले देखते हैं सम पॉट्स आर बकेट्स. तो ये सम पॉट्स है, उसके साथ बकेट्स. सम पॉट्स आर बकेट्स. नेक्स्ट है ऑल द बकेट्स आर टब्स, यानी जितनी भी ये बकेट्स हैं वो सारी की सारी क्या है? टब्स. उसके बाद है ऑल टब्स आर ड्रम्स. जितने भी टब्स हैं वो क्या हैं? वो है ड्रम. सो यही हमारा रफ डायग्राम बन रहा है. तो अब हम देखते हैं इसके अंदर अपनी कंक्लूजन्स को. पहली कंक्लूजन है सम ड्रम्स आर पॉट्स. अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ जो ड्रम्स हैं वो अभी भी ये पॉट वाले एरिया के साथ जो है कॉमन है, दिख रहा है. सो दैट मीन्स ये कंक्लूजन क्या हुई? ये कंक्लूजन हो गई सही, क्योंकि सम ड्रम्स दे आर पॉट्स. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन की. ऑल टब्स आर बकेट्स. तो जितनी भी टब्स हैं क्या वो बकेट्स हैं? नहीं. जितना टब्स का सर्कल है उसमें से कुछ पोर्शन बकेट्स का है, लेकिन सारा नहीं. सो ऑल टब्स आर नॉट बकेट्स, सम टब्स आर. तो इसका मतलब ये सेकंड कंक्लूजन क्या हुई? रॉन्ग. नेक्स्ट अप सम ड्रम्स आर बकेट्स. तो इसका मतलब है कुछ जो ड्रम्स हैं उनमें से कुछ बकेट्स हैं, यानी कि ये ड्रम्स वाला सर्कल है उसमें से कुछ पोर्शन हमें दिख रहा है कि बकेट्स हैं. सो दैट मीन्स कि सम ड्रम्स दे आर बकेट्स. तो क्या मतलब हुआ कि ये थर्ड कंक्लूजन भी करेक्ट होगा. So we have the first one which is correct, we have the third one which is correct. तो इसका मतलब हुआ कौन सा आंसर करेक्ट है? The option B, जहाँ पे 1 and 3 follows. So this is the correct answer which is option B. So you see how easy it is. आपको statements देखनी है, diagram बनाना है, conclusion check करनी है and then you have to refer to your answer key. Let's move ahead. Okay. So here we have the question. Now यहाँ पर question में हमें दिख रहा है कि थोड़ी complexity increase हो रही है, because now we have 4 statements, we have 4 conclusions and then we have the answer key. तो obviously थोड़ी complexity increase होगी, because जितनी ज़्यादा statements हैं उतना ज़्यादा complex हमारा diagram बनेगा. So let's see. Some doctors are lawyers, all teachers are lawyers, some engineers are lawyers, all engineers are businessmen. So स्टार्ट करते हैं. सम डॉक्टर्स आर लॉयर्स. तो ये कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो लॉयर्स हैं. नाउ ऑल टीचर्स आर लॉयर्स. तो यहाँ पर जितनी भी टीचर्स हैं वो सारी लॉयर्स हैं. सो यहाँ पर ये सपोज ये सारी टीचर्स हैं जो लॉयर्स हैं. सम इंजीनियर्स आर लॉयर्स. तो इसका मतलब कुछ इंजीनियर्स जो हैं वो लॉयर्स हैं. ऑल इंजीनियर्स आर बिजनेसमैन. सो
जितने इंजीनियर्स हैं वो बिजनेसमैन हैं। सो यू कैन सी दैट सम डॉक्टर्स दे आर लॉयर्स, तो ये दोनों का सर्कल हो गया। ऑल टीचर्स आर लॉयर्स, जितनी भी टीचर्स हैं वो सारी लॉयर्स हैं। सम इंजीनियर्स आर लॉयर्स, तो ये कुछ इंजीनियर्स का सर्कल लॉयर के साथ इंटरसेक्ट हो गया। एंड देन ऑल इंजीनियर्स आर बिजनेसमैन, यानी जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सारे बिजनेसमैन। Now this is one possible diagram. You can create a number of possibilities from these given statements, क्योंकि possibilities आप तब create करते हो जब आपको किन्हीं दो चीज़ों के बीच का relation mention नहीं होता। So जिस चीज़ का भी relationship mention नहीं है उसको आप एक possibility ले सकते हो कि वो true भी हो सकती है and false भी। So for example जैसे यहाँ डॉक्टर एंड लॉयर का रिलेशन है, लेकिन यहाँ टीचर और लॉयर का रिलेशन है, लेकिन टीचर और डॉक्टर का नहीं रिलेशन पता, टीचर और इंजीनियर का रिलेशन नहीं पता, टीचर और बिजनेसमैन का नहीं पता। इसका मतलब हो सकता है कि टीचर और जो डॉक्टर्स हैं वो भी इंटरसेक्ट करते हो, टीचर्स एंड इंजीनियर्स इंटरसेक्ट करते हो, टीचर्स एंड बिजनेसमैन करते हो एंड सो ऑन। जिन भी दो एलिमेंट्स का रिलेशनशिप मेंशन नहीं है, हो सकता है वो इंटरसेक्ट करते हो सकता है वो ना करते हो, वी कैन नॉट बी श्योर, उसे हम पॉसिबिलिटी लेते हैं। तो ये एक हमारा रफ डायग्राम है। इसी के अंदर हम बाकी पॉसिबिलिटीज भी कंसिडर करके वी विल सी दैट इफ इट इज़ ऑप्शनल, इफ इट इज़ पॉसिबल और नो। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहली कंक्लूजन, सम टीचर्स आर डॉक्टर्स। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि टीचर्स जो है वो लॉयर वाले सर्कल में है, यहाँ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि मेंशन्ड ऐसा नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसलिए आई एम नॉट श्योर। हो सकता है किसी केस में वो इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं, वी हैव नो नॉलेज ऑफ दैट। तो इसका मतलब हमें श्योरिटी नहीं है, हम पक्का नहीं कह सकते, तो दैट मीन्स ये गलत है। नेक्स्ट है कि सम बिजनेसमैन आर लॉयर्स। तो अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ये जो इंजीनियर्स हैं वो लॉयर्स हैं, और जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सारे बिजनेसमैन हैं, यानी बिजनेसमैन और लॉयर्स जो हैं वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो कुछ बिजनेसमैन का हिस्सा लॉयर्स के साथ कॉमन है। सो दैट मीन्स सम बिजनेसमैन आर लॉयर्स, ये तो एक करेक्ट बात है। देन वी हैव सम बिजनेसमैन आर टीचर्स। अब यहाँ पे देखेंगे ये बिजनेसमैन है और यहाँ टीचर्स है, हमें क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों का रिलेशन नहीं है। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिनमें इन दोनों का रिलेशन हो, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर नहीं है। सो अगेन इट्स नॉट अ श्योर कंक्लूजन, इसलिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। लास्ट है सम लॉयर्स आर टीचर्स। तो अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लॉयर्स का बड़ा सा सर्कल है, उसमें टीचर्स एक छोटा पोर्शन है, यानी कि लॉयर्स के बड़े सर्कल में टीचर्स थोड़ी सी एक पोर्शन है। सो दैट मीन्स सम लॉयर्स आर टीचर्स। सो ये एक ट्रू कंक्लूजन है, यानी कि ये वाली कंक्लूजन ट्रू हो गई। अब मेरे पास कौन सी दो ट्रू कंक्लूजन्स हैं, एक सेकंड वाली और एक फोर्थ वाली। सो इसका मतलब है कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, वी हैव ऑप्शन सी, ओनली द सेकेंड एंड फोर्थ कंक्लूजन फॉलो। So you see that again कॉम्प्लेक्स दिख रहा है बिकॉज नंबर ऑफ स्टेटमेंट ज़्यादा है, नंबर ऑफ कंक्लूजन ज़्यादा है, बट अगर आप एक बार एक क्लियर डायग्राम बना लोगे यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर्स। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव अगेन 4 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजन्स। तो अब यहाँ देखते हैं, ऑल प्लास्टिक्स आर ग्लासेस, सम स्पंजेस आर ग्लासेस, ऑल स्पंजेस आर क्लोथ्स, ऑल क्लोथ्स आर लिक्विड्स। तो अब इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑल प्लास्टिक्स आर ग्लासेस। तो जितने भी प्लास्टिक्स हैं ये क्या है, ये हैं ग्लासेस। सम स्पंजेस आर ग्लासेस, कुछ स्पंजेस जो हैं वो भी ग्लासेस हैं। ऑल स्पंजेस आर क्लोथ्स, जितने स्पंजेस हैं वो सारे क्या हैं, वो हैं क्लोथ्स। लास्ट, ऑल क्लोथ्स आर लिक्विड्स, जितने भी क्लोथ्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं लिक्विड्स। सो ये हमारा एक रफ डायग्राम बन गया। अगेन ऑब्वियसली इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि ये P जो है इसका रिलेशन S के साथ है, C के साथ है, L के साथ है, वी आर नॉट श्योर। सो अगेन दीज आर पॉसिबिलिटीज, नॉट दैट वी आर श्योर ऑफ दीज। अब अपनी कंक्लूजन्स चेक करते हैं। पहली, ऑल लिक्विड्स आर स्पंजेस। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जितनी भी लिक्विड है क्या वो स्पंजेस हैं, नहीं। लिक्विड का बड़ा सर्कल है, उसमें स्पंजेस एक छोटा पोर्शन है, सो दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अप, सम प्लास्टिक्स आर क्लोथ्स। तो यहाँ पर कुछ प्लास्टिक जो है वो क्लोथ्स है,
अब यहाँ पर वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि यहाँ पर सम प्लास्टिक्स दे आर क्लोथ्स, ऐसा ऑप्शन नहीं है। ऐसा किसी एक गिवन पॉसिबिलिटी में हो सकता है लेकिन हर केस में नहीं। सो दैट मीन्स ऐसा ये ट्रू नहीं होगा। देन ऑल ग्लासेस आर प्लास्टिक्स, क्या जितने भी ग्लासेस हैं वो प्लास्टिक हैं? नहीं, क्योंकि प्लास्टिक जितने भी हैं वो सब ग्लासेस हैं, उसका रिवर्स जो है वो ट्रू नहीं है, हमें क्लियरली डायग्राम में दिख रहा है। सो दिस इज फॉल्स। लास्ट वी हैव ऑल लिक्विड्स आर क्लोथ्स, तो क्या सारे के सारे लिक्विड क्लोथ्स हैं? नहीं, लिक्विड्स एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर क्लोथ्स एक छोटा पोर्शन है, तो कुछ लिक्विड जो है वो क्लोथ्स हैं बट सारे नहीं। सो दैट मीन्स ये फोर्थ वाली ऑप्शन है गलत। इसका मतलब इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करती। द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी none follows. So no conclusion is true. So now in today's session we've seen a number of questions, we've seen a number of statements, all wali, some wali, every wali. We've seen how to attempt these questions, we've seen how we can construct various possible diagrams and उसके अंदर से कैसे चेक करना है कि कौन सी conclusions true हैं या नहीं. So I hope that after a lot of questions done on syllogisms you have a better idea. आपको clarity होगी about what these questions look like. So thank you so much for being in this session. I'll see you in the next one. Thank you so much.